Bismillahirrahmanirrahim. First of all, welcome to the session. जो कि PMP स्प्रिंट 1 है, इसका नाम हमने रखा है। आपको आगे जाके पता चलेगा कि बेसिकली व्हाट इज अ स्प्रिंट। लेमैन टर्म में तो हम लोग स्प्रिंट एक 100 मीटर रन को कहते हैं कि स्प्रिंट मान लो यार। ठीक, इट इज़ अ रन, लेकिन इट वोंट बी ऑफ 100 मीटर्स। ये 100 मीटर का रन नहीं होगा। ये इट विल बी रन ऑफ 4 वीक्स, जिसमें आप प्रिपेयर करेंगे। आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर द PMP और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के एग्जाम के लिए। तो आई डोंट वांट टू कॉल इट अ बैच। बैच बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है। ये अब से स्प्रिंट कहलाएगा। हमारा एक पहला स्प्रिंट जो स्टार्ट हुआ है, तो इसका इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इस स्प्रिंट को लेके चलेंगे और किस तरह से हम अपने गोल्स को, एक म्यूचुअल गोल्स को अकॉम्प्लिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन। अगर आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा पाएँ, जो जो अवेलेबल हैं, तो इट वुड बी रियली ग्रेट। जी सर, उज़ैफ़ा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अभी आ रही है। जी जी, आ रही है। अच्छा, आई वाज वेटिंग कि आप किसको कॉल आउट करेंगे। जी जी सर। एक्चुअली आई एम हुज़ैफा उमर फारूक, a graduate of civil engineering from the same college that Abdurrahman has graduated from back in 2018. Since then, uh, I was I've been part of academia as well as industry, and mostly academia for 3 years. After graduation, उसके बाद साथ में मैंने masters किया. Masters was in civil engineering, and then I was serving as a lab engineer at NUST. And recently, I have decided, and meanwhile, I was working in a consultancy as well, or ओके। at the same time, and before that, I worked for uh, in some projects as a site engineer and as a junior structural engineer for like about 6 months to 1 year. And नो, दैट्स region. Currently, I'm working as a project engineer, some project coordinator type role. I'm working remotely for an American construction firm, and so actually, the reason that I am in this batch or sprint, what you call it, is because I want to actually switch to the management side of uh, management. So I have very little or no knowledge. To pursue my career in management, मैंने decide किया कि I should look forward to PMP. Yeah. So that is गुड। a दैट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू ज़फ़ा। आपके जो मोटिवेशन है, यू हैव सेड अ यस टू योर गोल कि यस मैंने ये करना है। दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो दैट इज़ फॉर व्हाट वी नीड फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। तो बाकी अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा, साथ मिल के लेके चलेंगे। वहाँ से हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है, बाकी ये बात हमारी HR से है। तो लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। Okay, Uzaifa. So you are the only student remaining. It's not a negative thing. Uh, just can you tell us about a passion of yours and why it excites you? It can be any passion. Just like my passion is photography. Okay, and it excites me because it captures a moment which cannot be explained. सो जो है ना, इस तरह से आपका कोई पैशन हो, आप कुछ थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहें तो। my passion as in the reason why I want to join this or a very नहीं नहीं, generic ओवरऑल question. ओवरऑल एनीथिंग। Achha, overall, my passion would be to uh, well, I love traveling. Yes, ओके। and see some new places or to meet new people and when they share their experiences I can you know मतलब यानी कि you get to learn a lot from it.
So yeah, the traveling and meeting new people and uh, what you say is uh, Okay, that's great. travel. Uh, Yeah. that's So actually, great. sorry, I got a message from the boss in the meanwhile. I'm really sorry. The ultimate Sorry, yeah. boss. मैं बीच में I got stuck because yeah. I'm really sorry. No, it's okay, it's okay. We both have bosses. एक जिनकी वजह से मैं लेट हुआ. ठीक है, no issues. Let's move forward. Okay. No shit. Let's meet your trainer for your this sprint. I am Engineer Abdurrahman Khan. I'm a PMP certified. I am a civil engineer from NAS, just like Huzaifa. And I have done my PMP certification in January 2024 and with all above targets in all of the domains, which you will get to know further in this presentation. Okay, what are the domains basically? And I have over 3 years of experience in project management on the managerial side, basically. सो दैट सीक्वेंस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन जो होगा हमारा बेसिकली, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमपी सर्टिफिकेशन के बारे में कि वो है क्या बेसिकली और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं. देन वील कम टूवर्ड्स द इट्स एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. आफ्टर दैट टाइमलाइन सर्टिफिकेशन प्रोसेस की कि पहले क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है. और फोर्थली हम लोग जो है ना इसके फोकस एरियाज देखेंगे. पीएमपी के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमें क्या क्या फोकस एरियाज चाहिए होंगे, ग्रेस्प करने के लिए क्या क्या नॉलेज एरियाज हम लोग को देखने पड़ेंगे ताकि हम उसको सर्टिफिकेशन के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके. उसके बाद हमारा हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के, और कौन कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस ट्रेनिंग के लिए. एंड लास्टली जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फाइनल टिप्स सक्सेस के लिए. ओके, सो व्हाट इज Right. द पीएमपी सर्टिफिकेशन. सो पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल पीएमपी सर्टिफिकेशन जो है बेसिकली एक ग्लोबल रिकग्नाइज क्रेडेंशियल है. जब आपका सर्टिफिकेट आता है उस पर भी लिखा होता है कि इट्स अ ग्लोबली रिकग्नाइज क्रेडेंशियल, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अमेरिका का जो एक इंस्टीट्यूट है उसने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में स्पेसिफिकली. ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन लीडिंग एंड डायरेक्टिंग टीम्स. और एक तो टीम्स की उनको डील करने की कॉम्पिटेंसी, और दूसरी प्रोजेक्ट को जो आपके 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, स्केजुअल, बजट और स्कोप, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए डिलीवर करने की कॉम्पिटेंसी. और आफ्टर डूइंग दिस सर्टिफिकेशन इट विल बेसिकली इम्प्रूव योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स. आपके इम्प्रूव काफ़ी हो जाते हैं. आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत एनहांस हो जाती है. आपका अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है. और आपको एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पीएमपीस में जो है ना आप बेसिकली आ जाते हैं. आप इस चीज़ को इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि currently in the world of where there are you can say many project managers, only 4% are PMP certified. ओनली द प्रोजेक्ट मैनेजर्स में, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं उनमें से सिर्फ जो है 4% जो है ना अपना पीएमपी सर्टिफाइड है. इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कुछ इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप अगर तो 4 साल की डिग्री है आपकी बैचलर्स की, या फिर आपके पास सेकेंडरी डिग्री है, या हाई स्कूल डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं. अगर 4 साल की डिग्री है तो आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और साथ ही साथ 35 आवर्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए. और इसके अलावा आपका अगर सेकेंडरी डिग्री है या फिर हाई स्कूल डिप्लोमा है तो उसके वो चीज़ कॉम्पनसेट होती है. फिर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, और उसके साथ साथ 35 आवर्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग या एजुकेशन होगी. नाउ व्हाट विल बी द टाइमलाइन ऑफ द पीएमपी सर्टिफिकेशन प्रोसेस. अब ये पूरी एक टाइमलाइन है जो मैंने बनाई है. सबसे पहले तो आप पीएमपी की एग्ज़ाम की ट्रेनिंग करेंगे, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे. ट्रेनिंग करके आप जाहिर सी बात है आपका 35 पीडीयूज, जो 35 कॉन्ट्रैक्ट आवर्स है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे. देन आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टार्ट
जब आप एक दफ़ा एप्लीकेशन कर देते हैं, यू हैव 90 डेज टू कंप्लीट दैट एप्लीकेशन। अगर आप 90 डेज में कंप्लीट नहीं करते तो वो एप्लीकेशन आपकी कैंसिल हो जाती है, फिर आपको दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। और वंस आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, वो रिव्यू होती है जिसमें 5 बिजनेस डेज लगते हैं। और रैंडमली आउट ऑफ 5 एप्लीकेशन या 6 एप्लीकेशंस एक आध जो है ना ऑडिट में चली जाती है। ऑडिट में जाती है तो आपके पास 90 डेज होते हैं उसका ऑडिट क्लियर करवाने के लिए, जिसमें जो आपने एक्सपीरियंस और पीडीयूज लिखे होते हैं उसका आपको प्रूफ जमा जमा करवाना पड़ता है। और एक्सपीरियंस का ये होता है कि आप मतलब जहाँ पे जो एक्सपीरियंस उधर फिल करते हैं उसी को ही वो प्रिंट आउट दे देते हैं कि आप इस पे ना वेरीफाई करवा के ला के दे। तो आपने अपने एम्प्लॉयर से उसको वेरीफाई करवाना होता है। इसके बाद जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, देन आपके पास होता है बिफोर स्केजुलिंग द एग्जाम, आप उसकी फीस पे करते हैं एग्जाम की। आफ्टर पेइंग द फीस आप एग्जाम को स्केड्यूल करते हैं और एग्जाम देते हैं। एग्जाम जो है ना आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑन सेंटर भी दे सकते हैं, लेकिन आई वुड पर्सनली प्रेफर कि आप लोग ऑन सेंटर दें। उस चीज़ को मैं आगे बताऊंगा क्यों कैसे, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि ऑनलाइन मेरे एक कुलीग ने दिया था एंड उसका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टॉर्ट हुआ थोड़ा सा, और उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। और आपको पता है पाकिस्तान में हमारी माशाल्लाह से इतने अच्छे इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो तो डिस्टॉर्शन चलती रहती है। तो वो हल्का से डिस्टॉर्ट होगा एग्ज़ाम का, आपकी वो अटैम्प्ट चली जाती है, अगली अटैम्प्ट आपको दोबारा से फीस पे करके देनी पड़ती है। उसके बाद आप जब पीएमपी सर्टिफाइड हो जाते हैं तो उसका आपका मेंटेनेंस पीरियड चलता है, जो कि आपने 3 साल में 60 PDUs प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करके डिफरेंट चीज़ों से इकट्ठे करने होते हैं फॉर पीएमपी रिन्यूएबल। ये पूरा एक टाइमलाइन सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, जो ओवरऑल के आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड होंगे आप। आई होप दिस इज क्लियर। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, पीएमपी एग्जाम ओवरव्यू। टोटल जो है 180 क्वेश्चंस होते हैं पीएमपी एग्जाम में, जिसमें से 5 अनस्कोर्ड क्वेश्चंस होते हैं और 175 क्वेश्चंस आर स्कोर्ड। अब एग्जाम में आपको नहीं पता होता कि कौन से अनस्कोर्ड हैं और कौन से स्कोर्ड हैं। आपको बेसिकली रैंडमली वो थ्रू आउट द एग्जाम होते हैं, आपको नहीं बताते कौन से स्कोर्ड है कौन सा अनस्कोर्ड है। आपका टोटल ड्यूरेशन एग्जाम का होता है 4.5 घंटे का या 270 मिनट्स का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज होता है। एक्चुअल एग्जाम से पहले आपका 10 मिनट का ट्यूटोरियल होता है, फिर आपका एक्चुअल एग्जाम का टाइम होता है 230 मिनट्स, जिसके बीच में दो 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 10-10 मिनट की ब्रेक्स होती हैं, और एग्जाम खत्म होने के बाद 10 मिनट्स का सर्वे होता है। टोटल ये 270 मिनट्स बनते हैं, जो कि 4.5 घंटे। एग्जाम कंटेंट आउटलाइन के बेसिकली एग्जाम में आता क्या क्या है। एग्जाम बेसिकली डोमिनेटेड है 3 डोमेन्स में, ये डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है पीपल डोमेन है, बंदों से रिलेटेड, टीम से रिलेटेड, जिसमें जिसकी परसेंटेज होती है 42%, या फिर आप कह सकते हैं कि 76 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। सेकेंडली प्रोसेस डोमेन होती है जो कि डोमिनेट करती है बाय 50%, और 90 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लास्टली बिजनेस एनवायरनमेंट के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं क्या, वो दैट इज 8%, जिसके 14 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, जो फोकस एरियाज अब क्या क्या होते हैं पीएमपी प्रिपेयर करने के लिए, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह आगे क्लासेस में टॉपिक वाइज। फर्स्ट होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं वो। सेकेंडली स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स को किस तरह से मैनेज करना है आपके डिफरेंट। उसके बाद कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस किस तरह से चलेंगे एक प्रोजेक्ट में। देन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक टाइप है एजाइल, वो पढ़ेंगे हम। देन टीम या रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, देन क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, स्केड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड देन द इंटीग्रेशन और द क्लोजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये 13 टॉपिक्स या फोकस एरियाज हैं जो कि हमें प्रिपेयर करने हैं इन ऑर्डर टू, यू कैन से कि प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, इन ऑर्डर टू ग्रैस्प द नॉलेज जो कि एग्जाम में हमारे हमारे पास आती है, जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है। हमारे जो है ना वर्चुअल इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, 6 टोटल क्लासेस होंगी, 3 आवर्स ईच की।
और दो क्लासेस होंगी पर वीक्स। आपको एक मैं जैसे कि एक तो हम लोग जो भी आप क्लास में हैं, और एक ही क्लास में पहले ले चुका हूँ, इस तरह से एक इंटरेक्टिव क्लास होगी हमारी। और इसके बाद हम लोग मैं आपके साथ एक कस्टमाइज्ड जर्नी प्लान शेयर करूंगा, आपकी नीड्स से रिलेटेड, जो कि आपको बड़ा रिगोरसली फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कब और कैसे करनी है। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसका एक, जैसे ये लेआउट है, पूरा प्लान है मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, कि उसमें फोकस एरियाज को किस तरह से लेके चलना है, फिर एप्लीकेशन के क्या स्टेटसेस हैं, सिमुलेटर आपको जो दिया जाएगा उसका क्या हिसाब है, फाइनल प्रेपरेशन के लिए भी है, उसके बाद आखिर में सेलिब्रेट सक्सेस और आपकी सक्सेस जर्नी रिकॉर्ड करेंगे। ओके। थर्डली, आपको इसमें मैं असाइनमेंट्स के तौर पर कुछ चीज़ें दूंगा, जैसे कि माइंड मैप्स। ये विद इन क्लास भी हो सकती है, ड्यूरिंग क्लासेस ब्रेकआउट रूम्स में भेज के आपको मैं हो सकता है उसमें भी करवा दूँ, हो सकता है कि मैं उसके बाद में भी आपको कहूँ कि यार आप ये टॉपिक पढ़ा है, इसके माइंड मैप बना के आप काइंडली जमा करवाएं। व्हाट इज़ अ माइंड मैप? दिस इज़ अ माइंड मैप, ये दिस इज़ माई माइंड मैप ऑफ स्टेक होल्डर। आप देख सकते हैं ये स्टेक होल्डर का एक पूरा माइंड मैप बना हुआ है, मतलब बेसिकली जो मैंने स्टेक होल्डर में पढ़ा, तो उसका एक खाका सा से मैंने बनाया है कि यार मैंने ये चीज़ें पढ़ी और ये इस तरह से इसके अंदर आती हैं। तो ये इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों ये चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है ये बेसिकली। माइंड मैप्स करने के बाद आप लोग जो भी टॉपिक होगा उसमें आप उसके क्वेश्चन आंसर्स दोगे, उसके टॉपिक वाइज मॉक्स होंगे और उसके वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आप उसकी रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, जिसको इन अदर टर्म्स हम लोग बोलते हैं लेसन्स लर्नड। ठीक है, मतलब आपने बेशक क्वेश्चन सही है या गलत है, आपने आप मैंने ये शीट आपको शेयर करूंगा, एक्सेल शीट जो आपके जर्नी प्लान है उसमें टैब्स बने हुए हैं। उसमें आपने लिख देना है कि आगे मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 से क्या चीज़ सीखी, 2 से क्या चीज़ सीखी, 3 से क्या चीज़ सीखी। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, एट द एंड ऑफ ऑल 13 टॉपिक्स आपके पास एक लेसन्स लर्न रजिस्टर बना हुआ होगा। अब वो लेसन्स लर्न रजिस्टर जो है आप को मदद करेगा रिवीजन के लिए। जब आपको रिवीजन चाहिए होगी, आप रिवीजन में जाहिर सी बात है सारी चीज़ें दोबारा से तो नहीं शुरू कर सकते, इट विल टेक मैनी टाइम, लेकिन आप वो क्या कहते हैं लेसन्स लर्न रजिस्टर तो पढ़ सकते हैं। इट वुड हार्डली टेक 2 आवर्स और 3 आवर्स। और हम लोग क्लासेस के अलावा हमारे वीकली स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्स हुआ करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव्स आर बेसिकली कि जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग की प्रोग्रेस क्या है अभी तक, और उसके साथ साथ हम कुछ पीएमपी के लेटेस्ट जो अप टू डेट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। आपको पीएमपी एग्जाम सिमुलेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस 13 टॉपिक्स आपको सिमुलेटर पे मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग डिफरेंट मॉक सॉल्व करेंगे। और उस पे उसका भी सेम होगा कि आप सिमुलेटर पे फॉर एग्जांपल मॉक 1 आपने किया और उसका फिर आप आरसीए या फिर लेसन्स लर्न भी साथ साथ करेंगे। इट वुड टेक फ्यू लेस टाइम, बट यू कैन से इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल कि आप उसका लेसन्स लर्न साथ साथ करते हैं। एट द लास्ट हम लोग इस बैच का एंड स्प्रिंट रिव्यू सेशन रखेंगे, जिसमें हम एवरीथिंग कंसाइज एक 4 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें सब कुछ हम लोग कौन सा रिवाइज करेंगे। और आप लोग एक कंप्लीट माइंड मैप बनाएंगे ऑफ ओवरऑल पीएमपी 13 टॉपिक्स का। वो बड़ी अच्छी इंगेजिंग जो है ना एक एक्टिविटी होने वाली है इंशाल्लाह। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ओवरऑल ये है 4 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। नाउ व्हाट विल यू गेट फ्रॉम आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम? इस पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये चीज़। आई कैन चैलेंज, आप मार्केट में देख लें कि जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, अगर ये सारे स्टेप्स के साथ सारी चीज़ों के साथ आपको कोई भी इस इन्वेस्टमेंट इतने पैसों में दे रहा है, तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप उनसे कर लें। लेकिन ये अभी तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम वैल्यू के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग। साथ साथ इसके रिजल्ट्स भी गारंटीड हैं। अगर आप इस सारा जर्नी प्लान मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको गारंटीड रिजल्ट्स हैं। देन मनी बैक गारंटी, इफ इन केस यू डोंट पास द एग्जाम, तो आपके पास ऑप्शन होगा, इधर यू कैन से कि मेरा आप पैसे वापस करें, या फिर आप हमारे साथ कंटिन्यू रख के अपनी सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं वर्स्ट केस सिनेरियो में। उसके बाद आपसे पर्सनली मैं डेली फॉलो अप लूंगा कि आप कहाँ पहुंचे हैं, कोई हर्डल्स तो नहीं है, कोई भी आप चीज़ है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ग्रुप भी है ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो एक कोलैबोरेटिव वे में चलेंगे इंशाल्लाह। और आपको जैसे कि मैंने बताया कस्टमाइज जर्नी प्लान मैं आपको दूंगा आपकी नीड्स के मुताबिक, कि जिस तरह से मतलब
कुछ लोग हैं जो कि स्लो पेस से चलोगे, कुछ फास्ट पेस से चलोगे, वो उनकी नीड्स के हिसाब से उनका कस्टमाइज जर्नी प्लान होगा। और आपको सिमुलेटर, मॉक्स का सिमुलेटर दिया जाएगा, एप्लीकेशन में आपकी हेल्प की जाएगी, और इंशाल्लाह उसको अप्रूव करवा के जो है ना, हम उसकी गारंटी होगी कि अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह। और लास्टली हमारे जो 35 कॉन्टैक्ट आवर्स हैं वो पीएमआई अप्रूव्ड होंगे। हमने कोलैबोरेट किया है पीएमआई के जो ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर हैं उनसे, और वो हमें बेसिकली इस ट्रेनिंग के बाद जो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अप्रूव्ड कॉन्टैक्ट आवर्स मिलेंगे। तो वो भी टेंशन से आप लोग फ्री रहें कि ये इसके आपको जो कॉन्टैक्ट आवर्स हैं उसका कोई मसला आएगा, इंशाल्लाह नहीं आएगा उसका मसला। ना वो हम लोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस क्या क्या यूज़ करेंगे इस ट्रेनिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जूम, जैसे कि अभी हम लोग जूम पे ही बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ प्रीमियम वर्जन ऑफ जूम, तो इसमें कोई हमारे पास लिमिटेशंस भी नहीं है कि 40 मिनट्स का है या इस तरह से चला। जूम पे होगी हमारी लाइव क्लासेस। और हम लोग यूज़ करेंगे मीरो ऐप। मीरो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, इसमें 3 पोर्ट्स फ्री दिए जाते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा मीरो ऐप किस तरह की होती है। तो उस पर आप माइंड मैप्स या फ्लो डायग्राम, जिस तरह से मैंने माइंड मैप्स का पता है, वो आप बनाएंगे। ठीक है। थर्ड दी एप्लीकेशन है क्विल्को। क्विल्को यूज़ की जाएगी आपकी ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए। आपका जो चैप्टर वाइज मॉक्स हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी क्विल्को पे होंगे। और इट इज़ पॉसिबल कि आपका मॉक सिमुलेटर भी क्विल्को पे हो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन पार्ट, द एग्जाम फीस और ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट जो टोटल है। आपकी जो एग्जाम फीस है, अगर आप तो नॉन पीएमआई के मेंबर नहीं हैं तो $555 या फिर पाकिस्तानी 1,60,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर आप पीएमआई के मेंबर बन जाते हैं तो आप उसमें सेविंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने 30% डिस्काउंट रखा हुआ है अगर वो मेंबर्स बनते हैं। तो उसके लिए आपको 80,000 रुपीज़ मेंबर क्या कहते हैं एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, और 30,000 रुपीज़ मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। टोटल ऑफ 1,10,000 रुपीज़ की अगर आप मेंबर्स बनते हैं तो पेमेंट करनी पड़ेगी 50,000, उसमें आपको सेविंग होगी। और हमारी जो ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट है डेट इज़ ऑफ 45,000 रुपीज़, जिसमें आपको अप्रूव पीएमआई से अप्रूव 35 कॉन्ट्रैक्टर्स भी मिलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, मॉक सिमुलेटर भी मिलेगा, आपका कस्टमाइज जर्नी प्लान भी मिलेगा, लेटेस्ट जो अप टू डेट स्टडी मटेरियल वो मिलेगा, एप्लीकेशन सपोर्ट और लाइफ टाइम मेंटोरिंग जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको किसी स्टेज पे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको हर 3 साल बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो उसमें भी आप, ये भी इंक्लूडेड है इसके साथ। तो ग्रैंड टोटल आप कह सकते हैं कि अगर आप नॉन मेंबर तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2,05,000 रुपये आपके लगेंगे। अगर एज ए मेंबर्स आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप आना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको डिस्काउंटेड 1,55,000 रुपीज़ पाकिस्तानी लगेंगे आपके। एंड इट्स सब्जेक्ट टू चेंज डॉलर की रेट्स पे सारी चीज़ें। ओके, नाउ द फाइनल टिप फॉर सक्सेस, दैट मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता दी कि ये चीज़ें हैं, हम ये करेंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए होगा अपने लिए जो आप करें और सक्सेस करें। देखिए, मेरी माई एफर्ट वुड बी लाइक 20 और 30%। आई एम योर कोच, योर ट्रेनर। मैं आपका मेंटोर हूँ। मैं आपको चीज़ कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, लेकिन आपके लिए आपको प्रिपेयर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। सो फॉर पीएमपी प्रिपरेशन, फर्स्टली आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैंने ये चीज़ करनी है, जो कि आप में से काफ़ी लोग कर चुके हैं, कि ये मैंने ये चीज़ करनी है और मैं ये करके रहूँगा। सेकेंडली, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। एक चीज़ ना, एक थ्योरी थी जो मेरे ट्रेनर ने, मेरे पीएमपी ट्रेनर ने मुझे बताई थी कि 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कि आप रोज़ कुछ ना कुछ करें। कोशिश करें कि अगर आप रोज़ 3 घंटे दे सकते हैं, 4 घंटे दे सकते हैं, तो डैट वुड बी रियली गुड। लेकिन आप रोज़ कुछ ना कुछ करें। कंसिस्टेंसी इज़ द की। थर्डली, फॉलो द जर्नी प्लान। आपने इस चीज़ में एक्सेल करना है इंशाल्लाह। इस चीज़ को, जाहिर सी बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्जाम फीस भी, सारी चीज़ें। तो आप जो जर्नी प्लान मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको आपने बड़ा रिगोरसली फॉलो करना है। डोंट गो स्किप टू द नेक्स्ट थिंग बिफोर कंप्लीटिंग द प्रीवियस थिंग। एट द लास्ट, प्रैक्टिस। इसमें हमारे सब पीएमपी एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और प्रैक्टिस इज द की। जितनी ज़्यादा आप सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें बेहतर होंगे। आपको हर दफ़ा नई चीज़ देखने को मिलती है। लास्ट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपके पास कोई भी
क्वेश्चंस हैं, यू कैन लेट मी नो। एनीबॉडी, किसी के कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बता दें।